stroke player Bhavesh Pawar, and from the Indian side, Matin informed batsman, Munaf is there, Baba also informed. I think there is also testing of Vicky's bowling. No, definitely. I mean, when two strong teams play, batting is almost even Stevens, but it will be the bowling that will decide the result of the match. And having said that, because two teams are very powerful, neck to neck, have similar kind of cricket experience, I personally feel that fielding is also something that will be a game changer in this semi-final. Yes, next match of 40 plus final. 4 overs 40 plus final between Tufan Pimplas and Pimpalgarh. Then another ruler final between Ekvira Mankoli and Bhargashu Sport. Then mega finale right on 7:30 p.m. So, two openers on the ground, Ajay Bhoyer and Shekhar Dalvi. In this season, both batsmen made half century. Siddiq, look at one thing. Vicky Sports Kukse has given chance to Shekhar Dalvi. He's the regular opener, and that respect he commands and he demands. So I think this is a very good strategy to send their regular openers against B Indians' lethal bowling attack. Yes, they know. Both the team playing a professional cricket. They know because Shekhar is one of the class player in front of the wicket. He is in good touch. And I think Bhavesh Pawar right decision. Two openers on the ground, and it's going to be B Indian Missile, the captain of B Indian Uzair, open the bowling attack. Yesterday, Akhtar opened the bowling attack. Now, the different tactic used by B Indian also. Oh, definitely, and this has to be the game because you cannot stick to one plan for all the conditions in all the matches. आयोजकों की ओर से जनता जनार्दन से ये प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि किसी भी प्रकार की धार्मिक घोषणाएं ये न दी जाए. रिलीजियस कोई भी स्लोगन नहीं रहेगा, आप अपनी टीम का उत्साह बढ़ाएं. ऐसी कोई बात या शब्द ना कहें जिससे किसी को भी तकलीफ हो. Is going to be Uzair. Sun has gone behind the cloud. Today is a cloudy day. And Uzair reaches bowling mark. Turn from Asha Patil northeast end. Here he go. First ball, check his stroke, loose bottom and push by Ajay Bhoyer. And he off the mark. A confident looking push. He waited to comes to him, then loose bottom and push. And let us not forget, Ajay Bhoyer is a good accumulator of the runs. He has that tempo building ability to stay on the wicket for 6 overs, and that is what he showed in his last match. So I'm sure once more kind of performance is expected from him today. Uzair reaches bowling mark, turn from Asha Patil northeast end. Goes to Shekhar, goes his back foot and tapped his ball. Ball is slightly keeping low around the upper stump. Both batsmen open their account and 2 for no wicket. Vicky Sport Kukse. Yes, it is a tight line bowled so far by Uzair, not giving any width whatsoever for the batsman to go ahead and open their arms. It's a disciplined bowling so far in first 2 deliveries. Uzair reaches bowling mark, facing him Ajay Bhoyer. This time good looking stroke, square of the offside. 3 times batsman waited to comes to him, then open the face of the bat. This is the class cricket. Definitely, it is wait and watch on both the sides so far. You wait, we watch, and when we watch, you wait. Yes, 3 for no wicket. Both teams are very famous. Uzair. Goes to Shekhar, this time far from the, away from the office stump, white signal, and Shekhar tried to play a slog sweep. Definitely, it was the pace that did the trick. Uzair wanted to go for a change of pace, not able to control the pitch of the ball, and that fetched an extra run and extra delivery for Vicky Kukse. Uzair reaches bowling mark, turn from Asha Patil northeast end. Here he go.
This time fine delivery, they threw for a cheeky single. Good running between the wicket. This is the nice understanding. Welcome the founder member of Challenge, Viju Thakre Urf Viju Kaka in Balaji Cup. I am thankful to Viju Thakre for introducing me to Mr. Vilas R and Challenge. Thanks to Viju. A good Yes, friend. similar thanks from me to Vilasar and Challenge in 1994. And here goes Uzair. Ball this time, beautiful ball, appeal for LBW. Yes, he's out. Little bit a late decision. First wicket has gone for cheaply. Ajay Bhoir is out. Constantly he was looking to play sidewards, and that particular sweep shot was not as sweet as we thought, and umpire had no second thought and he gave him out. Yes, umpire is the best judge. First wicket has gone, man out. Ajay Bhoir set back to the pavilion for 2, and Vicky Sport Kukse 5 for the loss of 1 wicket. New batsman in form batsman Kumar, since from Bali Trophy and since from here in Baba Saheb Ambedkar Cup. He made half century, back to back 3 batsmen. These are 3 made half century in this season. Ajay Bhoir, Shekhar and Kumar, as far Vicky concerned. Sun has gone behind the cloud now. Terrific atmosphere of cricket, ideal cricket condition here at the CCG. Welcome once more, Viju Thakre, the founder member of Challenge. Here goes Uzair. Goes to Kumar, lovely looking drive. He goes his back foot, I think, and like a helicopter drive all on the ground to deep mid off for a single. So it has been a good over for B Indian. I think Huzair tested the footwork of openers, and good bowling by Huzair, getting rich dividends. तर मनापासून विजू ठाकरे यांच्या मी आभारी आहे. प्रेसी अंकलच्या दुकानामध्ये त्यांच्याशी ओळख झाली आणि विलास पाटील यांच्याशी आणि चॅलेंज बरोबर संपर्क करून दिला. आज 16 वर्ष झाले त्या गोष्टीला, आणि खूप खूप आभार विजू ठाकरे आपला. धन्यवाद. एक ओवर की समाप्ति 6 रन. बिल्कुल शुरुआत धीमी है, लेकिन विकी स्पोर्ट कुक्से के बारे में तो दोस्तों आपको पता है कि कब कुमार बाजुओं को खोल दे. लेकिन यहाँ से भी इंडियन चाहेंगी कि कुमार टिके ना रहे, लेकिन विक्की के कप्तान ने उनको जो आदेश दिया है, क्या नबील दिवकर ने कमेंट्स दिए थे जब मुकाबला बाली में हो रहा था कि भावेश पवार ने कहा है कुमार तू मार. साइबान फक्की कुमार के लिए पुल हवा में और कुमार आउट. बड़ी विकेट. ये देखिए साइबान फक्की ने जानबूझ के गेंद को छोटा रखा था और wasn't a बैड डिलीवरी. ऑफ स्टंप के बाहर से इस तरह के शॉट अक्सर कैच में परवरित होते हैं. और सबसे बड़ी बात, साइबान फक्की इज अ सरप्राइज पैकेज ऑफ बी इंडियन. कल रात में जो उनकी गेंदबाजी की जो स्पीड थी, मुझे ऐसा लगा ही इज द फास्टेस्ट इन भिवंडी एज ऑफ टुडे. और इस वक्त जो गेंद थी, जैसे मैंने बताया, फील्डिंग विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर दानिश मेरे ख्याल से उन्होंने कैच को लपका था, और विकी स्पोर्ट्स कुक्से के ऊपर अब थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में कामयाब हुई है बी इंडियन. बिल्कुल. इस स्थिति में हम कह सकते हैं अभी भी बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप बाकी है, खेल काफी बाकी है. नए बैट्समैन नाना कप में जिन्होंने धूम मचा दी थी अपने हेलीकॉप्टर स्ट्रोक से, महेंद्र मागे बल्लेबाजी को आए हैं. शेखर कुछ उनको समझा रहे हैं. शेखर के पास काफी अनुभव है, लेकिन बी इंडियन ने भी जो शतरंज की बाजी थी उसको पलट दिया है. दूसरे ओवर में लाके खड़ा कर दिया मसल्स गेंदबाज साइबान फक्की को.
साहिबान फक्की, आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। ये देखिए पैक क्राउड दिखाया जा रहा है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा ऑन दी अप खेला गेंद को। अच्छा स्ट्रोक डीप एक्स्ट्रा कवर में कप्तान उजैर के पास 1 रन। अच्छा स्ट्रोक, अगले पांव को लंबा खींचा था, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लिया था। महेंद्र मागे भी इस बात को समझते हुए कि 2 विकेट जल्दी गिरे हैं, इसलिए स्ट्राइक को बदलना उचित होगा, और वही वजह थी कि उन्होंने स्कोरबोर्ड को गति में रखा और 1 रन पूरा किया। इस मरतबा हवा में गेंद है, जमा नीचे, लेकिन गेंद बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। हरेश, ये विक्की का क्रिकेट है, ये विक्की का क्रिकेट है। लेकिन गेंद जब हवा में रही थी, थोड़ा सा जो कलेजा हलक को आया होगा शेखर का। प्योर क्रिकेटिंग शॉट आप देखें, जमा वहां पर वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स ऑफ बी इंडियन, लेकिन शॉट को फिनिश इस तरह कुछ किया था कि बॉल बाहर चली गई थी, और ये सिक्सर ने विकी स्पोर्ट्स कुक्से के खिलाड़ी जो पवेलियन में बैठे उनके चेहरों पर एक मुस्कुराहट ला दी है। बिल्कुल, इस सिक्सर से स्कोर विकी स्पोर्ट कुक्से का आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 13 रन। जयेश पाटिल का आना बाकी है। इस मरतबा सीधे ब्लेड से हवा में और शेखर आउट। 1 तुम्हारी 1 हमारी। सामने जो बच्चे, आपको अंदर नहीं आना है, वहां पुलिस आ रही है। देखिए मनसुख जी सूर्यवंशी यहाँ पे मौजूद है, आपको कोऑपरेट करना है अथवा आप पे कार्रवाई की जाएगी कोई भी मैदान में आया तो। देखिए सिद्दीक, यहाँ पर साहिबान फक्की की जो समय सूचकता है उसको मैं सलाम करना चाहूंगा। चतुर गेंदबाजी, पिछली बार उन्होंने थोड़ी आजादी दी थी क्योंकि साइडवेज में बाउंड्री छोटी है, लेकिन जब स्ट्रेट मारने गए, और आज का दिन दानिश ने वाकई कल बल्लेबाजी से रंग भरे थे और आज अपने क्षेत्ररक्षण से। बिल्कुल, वैसे भी मुकाबला इतना बड़ा है, मैंने तो कहा था कि आप सेमीफाइनल में छुपा हुआ फाइनल देख रहे हैं। इसकी हर ओवर अपने आप में एक मैच है, इसकी हर गेंद अपने आप में एक मैच है। ये देखिए मौसम कितना खुशगवार हुआ है, सूरज बादलों के पीछे छुपता हुआ, सूरज और बादलों के बीच में जो बैटल चल रहा है उससे अच्छी आंख मचोली गेंद और बल्ले के बीच में। विजू ठाकरे हमारे कमेंट्री बॉक्स में। इस मरतबा परिवर्तन के तौर पे बढ़िया गेंद स्विंगिंग और करती, बैकलीफ को नीचा किया था वहां पर महेंद्र मागे ने। मागे आज आगे खेल रहे वाकई में, और साहिबान फक्की ने जिस हिसाब से शुरुआत की है, बी इंडियन के कैप्टन हुजैर की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। एक सोचा समझा गेम प्लान क्लियरली नजर आ रहा है कि कल उन्होंने अख्तर से शुरुआत कराई थी, आज हुजैर ने स्वयं शुरुआत की। कल साहिबान को आखिरी में लाया था, आज साहिबान को जल्दी लाया है। बैटिंग ऑर्डर को रोटेट करते हुए तो हमने बहुत बार देखा है, लेकिन बॉलिंग ऑर्डर को इस तरह इंटेलिजेंटली रोटेट करता हुआ बी इंडियन को हम देख रहे हैं, और ये उनके लिए काम कर रहा है। बिल्कुल, बालाजी स्पोर्ट्स का चौदह रन हो चुके हैं, और कितनी गेंदें बची है साहिबान फक्की के इस ओवर में? 1 गेंद। रन को देखे तो 14, लेकिन विकेटों का जो डिपार्चर है वो ज्यादा नजर आ रहा है। 3 विकेटें गिरी है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जयेश पाटिल वंडर बॉय और भिवंडी अब बल्लेबाजी को आए हैं। और सिद्दीक भाई, आपने देखा होगा विकी स्पोर्ट्स कुक्से का जो क्रिकेट रहा है वो हमेशा आक्रामक रवैये वाला क्रिकेट रहा है। चाहे सामने कोई भी टीम खेल रही हो, 2 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट तक, 6 विकेट तक पेट का पानी नहीं हिलता, ऐसी ये टीम है। और इस वक्त जो स्थिति है वो वाकई में बी इंडियन के पक्ष में नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने 3 आला दर्जे के चोटी के बल्लेबाजों को आउट किया है, और इसके लिए जो निर्णायक रहा है वो उनका क्षेत्र रक्षण। आए गए मौके को भुनाते हुए बहुत ही दर्शनीय कैच मैदान में बी इंडियन के क्षेत्र रक्षकों द्वारा। जो बच्चे विक्की स्पोर्ट के प्लेस पवेलियन में बैठे हैं, आपको वहां से हट जाना है। हमको पता है आपके बच्चे नहीं है, हम इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को वहां से निकल जाना है। जो व्यू है वो अच्छा नहीं लगता है प्लेस पवेलियन का। स्कोर इस वक्त 14 रन, 3 विकेटों के नुकसान पे नए बैट्समैन जयेश पाटिल। द क्लास इज परमानेंट,
द फॉफी बालाजी कप। 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। नक्कीच या सामन्यानंतर 40 प्लसचा मेगा फिनाले फायनल मॅच होणार आहे। मी तुफान पिंपलास आणि गावदेवी पिंपळगर दोन्ही संघांना बिलकुल तयार राहायला सांगतो आणि त्यानंतर ग्रामीण क्रिकेट मधील फायनल भार्गवी स्पोर्ट सरोलीपाडा व एकवीर स्पोर्ट मानकोली। खेल की शुरुआत होती हुई आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। साहबान फक्की जयेश पाटिल को बहुत खूबसूरत ड्राइव ऑफ वॉली पे लेके लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ दूसरे के लिए पलटे हैं। और ये देखिए जिस तरह बिलाल शेख भागे उस तरह जयेश पाटिल भागते हैं और उसी तरह आसिफ नाना भी भागते हैं। नहीं, बहुत अच्छी सोच। मैं समझता हूं कि सूझबूझ के साथ महेंद्र और जयेश दोनों क्रीज के ऊपर फ्रेश है, टांगों में जान है, स्फूर्ति है और दोनों काफी अच्छे रनर है विकेटों के बीच में। और सही सोच के साथ उन्हें पता है कि इस वक्त हवाई मार्ग की यात्रा महंगी है, एयर फ्यूल सरचार्ज महंगा हो गया है, इसलिए जमीन मार्ग से चले, भले थोड़ा देरी से चले लेकिन चलते रहना जरूरी। बिल्कुल 2 ओवर की समाप्ति 16 रन। विकी स्पोर्ट कुक से टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई महेंद्र स्पोर्ट सिटी क्रिकेट में फाइनल में पहुंच चुकी है। दोनों 40 प्लस के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस के लिए आना है। दोनों 40 प्लस के कैप्टन तूफान पिंपलास और पिंपलगढ़ के कैप्टन। तूफान आने वाला है 40 प्लस का, हवाएं चल रही है। देख रहे हैं कप्तान उजैर को कंटिन्यू रखा गया है। पहली गेंद बहुत खूबसूरत रिवर्स स्वीप, गेंद डीप थर्ड बाउंड्री के बाहर 4 रन। दिस इज द क्लास स्टोर। हरीश क्या गजब का शॉट खेला है महेंद्र मागे ने। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ऑफ स्टंप को पहले ही कवर कर दिया था। उन्हें पता था हुजैर की गेंदें ये ऑफ स्टंप के आसपास रहती है और जैसे ही ऑफ स्टंप उन्होंने कवर कर दिया, केवल दिशा देनी थी और वहां पर थर्डमैन का खिलाड़ी सर्कल में था, फाइन जगह पर और प्लेसमेंट थी वाइड और केवल टाइमिंग के बलबूते पर अच्छा हैंड आई कोऑर्डिनेशन, 4 रन। विजू ठाकरे ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है और ऑल इज वेल भी चलता हुआ। कभी मैच यहां तो कभी यहां वहां। इस मर्तबा कदमों का इस्तेमाल किया था, निकल के मारना चाह रहे थे, गेंद की लंबाई को कम किया। इस ड्रॉपिंग शॉट अपने स्ट्रोक को चेक किया था वहां पर महेंद्र मागे ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह मैच तो पुराने जमाने की उस घड़ी के पेंडुलम की तरह रहेगा, कभी यहां तो कभी वहां। गेंदबाजी कर रहे हैं उजैर, सामना करेंगे जयेश पाटिल। ये गजब के टेम्परामेंट खिलाड़ी हैं। इस मर्तबा रिवर्स, हो पहले बाउंस पर देखना है 4 रन। ये देखिए ये जयेश पाटिल है कि एक बार अगर रंग में आ गए तो क्रिकेट के सारे रंग बालाजी में दिखाई देंगे। क्या गजब का शॉट है, क्या आत्मविश्वास है, क्या उनकी सोच है। उनको पता है उजैर आउटस्विंग गेंदबाजी के माहिर हैं और उनको वहीं खेला। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि गेंद के अनुमान को बहुत जल्दी पढ़ लेना। हुजैर जो है ये गति के गेंदबाज है और मूवमेंट ज्यादा नहीं मिलेगी, ये शायद उन्होंने पहले पढ़ लिया था, बल्ले को घुमाया और दिशा से ही चुनी थी और एक अलग प्रकार का क्रिकेट अब विकी स्पोर्ट्स कुक्से के दोनों मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन द्वारा। ये ओवर में अब तक 3 गेंदों में 9 रन आए हैं। विकी स्पोर्ट कुक्से के लिए अच्छा ओवर,
तेज हवाएं बह रही है उजैर मुड़ते हुए, जयेश को अच्छी वापसी। इस तरह के शॉट के लिए आपको गेंद का चुनाव करना होता है। सबसे बड़ी बात है स्ट्रोक सिलेक्शन। सुबह जब आप दफ्तर में या स्कूल में जाते हैं या पढ़ाई करने जाते हैं तो आप कौन सा शर्ट पहनेंगे आप चूज करते हैं। सिलेक्शन इज ऑल अबाउट टेकिंग राइट डिसीजन। गेंदबाजी कर रहे हैं उजैर, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की जानिब से मुड़ते हुए, कोई स्लिप नहीं कोई गली नहीं, उजैर मुड़ते हुए फिर से रिवर्स खेलने की कोशिश, फिर से बीट किया। जब एक अच्छा शॉट आप खेल चुके तो सर पे बर्फ रखकर वहां स्ट्राइक को भी रोटेट कर सकते थे, सामने भी बहुत बड़े बैट्समैन हैं। नहीं, और यहां पर हुजैर की चतुराई की मैं दाद देना चाहूंगा। इस बार गेंद को थोड़ा सा ज्यादा उन्होंने स्पीड से किया था ताकि रिवर्स शॉट खेलने में उन्हें थोड़ी तकलीफ हो। बिल्कुल, बहुत तेज गेंद पर ये शॉट है, इतना आसान नहीं। फिर से अच्छी गेंद, अंदरूनी सिरा, चाइनीज कट लग कर गेंद गई थी विकेटों के पीछे। 1 रन से 3 ओवर की समाप्ति, 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। तूफान पिंपलास और पिंपलगढ़ 40 प्लस की दोनों टीमों को हम आखिरी ऑफिशियल कॉल दे रहे टॉस के लिए। 4 ओवर का वो फाइनल रहेगा, उसके बाद 4-4 ओवर का ग्रामीण का फाइनल रहेगा और ठीक 7:30 बजे आप देखेंगे कौन बनेगा विजेता। अगले 3 ओवर में क्या होता है, आइए दोस्तों ये सुनते हैं गोल्डन वॉइस, जिनकी आवाज कानों में रस घोल देती है कि वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं। हरीश पंड्या। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक बाबे। भिवंडी की जनता को प्यार भरा नमस्कार। श्री स्वामी समर्थ मूवी सोनाली द्वारा आपके घरों तक आ रहा ये टेलीकास्ट, आप अगर घर में बैठकर देख रहे हैं, आप सभी को शुभ संध्या। जो मैदान में हमारे दर्शक भाई आए हैं उन तमाम दर्शक भाइयों को हमारी ओर से शुभ संध्या। आज का दिन ये वंडरफुल वेडनेसडे है। विकी स्पोर्ट्स कुक्से और बी इंडियन के बीच यहां पर दूसरा सेमीफाइनल शुरू हो चुका है। पहले 3 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 26 रन बनाए हैं विकी स्पोर्ट्स कुक्से ने। टॉस जीतकर कैप्टन हुजैर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। 3 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए थे जब अजय भोईर 2 रन पर आउट हुए थे एलबीडब्ल्यू, और उसके बाद शेखर और कुमार बैक टू बैक साइबान फकी की गेंदबाजी पर कैच आउट किए गए थे निजी 7 और 1 के योग पर। 13 रनों की पार्टनरशिप। अख्तर के नेवर की पहली गेंद और हॉरिजॉन्टल बैट शॉट जयेश ने खेला था। वहां पर जमा के हाथ से गेंद थोड़ा वक्त क्या छूटिए, यहां पर एक और विकेट गिरने का। नेवर रन ऑन अ मिसफील्ड। अब क्या इसकी जरूरत थी। जमा क्या मास्टर प्लान था या हाथ से छूटा, जो भी हो मजा आ गया बी इंडियन के समर्थकों को, क्योंकि हाथ से गेंद क्या छूटी। जयेश पाटिल बिल्कुल डरबी रेस के घोड़े की तरह निकल चुके थे। वहां पर महेंद्र माके के लिए कमिट होना जरूरी था और वहां पर 2 में से किसी एक का शिकार होना जरूरी था। वहां पर व्हाट अ वे टू टेक अ विकेट। वहां पर सामने जो स्टैंड है उसमें कुछ दर्शक लगे हुए पर्दे के साथ खेल रहे हैं, जरा प्लीज थोड़ा सहयोग कीजिएगा, थैंक यू। आउट होकर वापस चले गए महेंद्र मागे 7 रन बनाकर, और अब जयेश का साथ निभाने आ गए नए बल्लेबाज हेमंत हरड़। हेमंत हरड़ जिन्होंने कल मैन ऑफ द मैच हासिल किया था अपनी गेंदबाजी के बलबूते पर। एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन। विकी स्पोर्ट्स कुक्से की बल्लेबाजी को बराबर से इस वक्त चुनौती दी है बी इंडियन के गेंदबाजों ने। 27 पर 4। इस बार उठा दिया और बॉल मैदान के बाहर चली जाएगी। लाजवाब शॉट। और स्लॉट में दी थी गेंद। अख्तर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आए थे और जैसे ही गेंद ने टप्पा खाया उसके ऊपर 2 अक्षर लिख दिए गए थे, जे फॉर जयेश, पी फॉर पाटिल, जेपी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 पर 4। बहुत अच्छी वापसी यहां पर जयेश पाटिल द्वारा। उन्हें इस बात का इल्म है कि महेंद्र मागे के रन भी मुझे बनाने होंगे। 33 पर 4।
ओवर द विकेट आए अख्तर और इस बार गेंद मैदान के बाहर और पार होती हुई इस बार दस्तखत करता हुआ सिक्सर जयेश पाटिल का। हुकूमत कायम की और गेंद को अपनी कनीज बनाकर रख दिया बल्ले ने। पाटिल का स्कोर हो चुका है अब। और हरेश ऐसे ही कोई वंडर बॉय नहीं बनता है, उसका खेल वंडर है। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं बड़े मैच के खिलाड़ी और लंबी रेस के घोड़े हैं। और वाकई में आज विकी स्पोर्ट कुक्से ने जो सब कुछ लगा दिया है वो जयेश पाटिल पे लगा दिया। दो बेहतरीन शॉट उन्होंने खेले अख्तर की गेंदबाजी पर। पहला वाला था वो आत्मविश्वास भरा और दूसरा हुकूमत कायम करता हुआ गेंदबाजी के ऊपर 39 पर 4। मुझे तो ऐसा लगता है कि अख्तर की गेंदबाजी से मानो चिढ़ है। और इस बार आउट होते हुए दर्शनीय कैच और हिसाब बराबर करते हुए अख्तर। जल्दी बल्ले के मुंह को खोला, जल्दी बल्ले के मुंह को खोला। और क्या क्रिकेट हो रहा है। अख्तर भी कहां मानने वाले थे, उन्होंने भी आखिरकार। देखिए आपको पटाखे नहीं बजाना है, प्लीज आप सपोर्ट कीजिए, प्लीज कोऑपरेट करें। और सिद्दीक बाबे जो टाइप का क्रिकेट हुआ, देखिए पहले वंडर, उसके बाद में थंडर और उसके बाद में अंडर। बिल्कुल, ये देखिए किस तरह से जयेश पाटिल ने खेला था। मेरे ख्याल से ज्यादा पहले बल्ले के मुंह को खोला और खेलना चाहते थे बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, लेकिन गेंद चली गई लॉन्ग लेग बाउंड्री पर। लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी करने के बाद आउट हुए जयेश पाटिल। आउट होने से पहले उन्होंने 20 रन बनाए, एक बहुत ही जबरदस्त बारी। ये बहुत अच्छा अनुमान लेकर शॉट को खेला गया था। यहां पर मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्षेत्ररक्षक थे बाबा, जिन्होंने अपने संतुलन को बनाए रखा। और बाबा का ये कैच वाकई में बी इंडियन के खेमे में थोड़ी सी खुशियां लाता हुआ, क्योंकि जयेश पाटिल काफी खतरनाक बल्लेबाजी के तरफ जा रहे थे और ऐसे में उनका विकेट लेना ये स्कोरिंग पर अब अंकुश लाने में थोड़ी बहुत मदद जरूर करेगा बी इंडियन को। पांचवा विकेट गिरता हुआ जयेश पाटिल का योगदान 20 रनों का रहा। आक्रामक क्रिकेट, असरकारक क्रिकेट, आकर्षक क्रिकेट, अफलातून क्रिकेट, अद्भुत क्रिकेट, अनोखा क्रिकेट, असाधारण क्रिकेट, अतुलनीय क्रिकेट। यह क्रिकेट तभी संभव होता है जब दो बड़ी टीमें खेलती है, विकी और बी इंडियन। इस बार टपा खाकर अंदर की तरफ कटी थी गेंद, बैकफुट पर गए और केवल दिशा दी थी उस गेंद को बैट्समैन योगेश ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 पर पहुंचा, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर विकी स्पोर्ट्स कुक्से का। बिल्कुल, नए बैट्समैन योगी आए हैं, कौन भूल सकता है योगी को। वंस अपॉन इन भिवंडी क्रिकेट मेयर कप 2008 का वो मुकाबला बाबा स्पोर्ट बनाम चैलेंज, राजू बोगा को आउट नहीं किया, योगी को जीवन दान दिया, 16 रन बनाए, मैच जीता। इस बार ऑलमोस्ट हेलीकॉप्टर स्टाइल में खेला था हार्ड ने, वहां पर दानिश का बहुत ही अच्छा क्षेत्ररक्षण और थ्रो। 2 रनों की बचत दानिश ने की। सिद्दीक इस बात को भूलना नहीं होगा, दानिश इज अ लेफ्टी गाय। वो अपनी राइट साइड पे जा रहे थे और संभल कर थ्रो करने में जो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वक्त लगा, वहां पर दूसरा रन पूरा कर दिया। Yes, excellent cricket. Look at that helicopter drive while in the air, right off the bowler, and equally stopped by Danish, saving 2 runs for his side. इस मैच की शुरुआत के समय मैंने बताया था कि जब बॉलिंग और बैटिंग लगभग समान हो, ऐसे में क्षेत्ररक्षण ये बहुत अहम रहेगा। और बी इंडियन का क्षेत्ररक्षण अभी तक बहुत ही लाजवाब रहा है आउटफील्ड में। और कुल मिलाकर ओवर समाप्त हुए हैं अब 4 और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो गया है 42, यानी कि पिछले ओवर में 16 रन बने और जयेश पाटिल 2 खूबसूरत शॉट खेलने के बाद तीसरी गेंद पर आउट होते हुए। और अब ये मैच में वापस लौटने का प्रयास करते हुए बी इंडियन। बिल्कुल, यहाँ से विकी स्पोर्ट 60 पे नजरेगारी भी है और अच्छा टोटल मैं कहूंगा। 4 ओवर में आपने 42 रन बनाए, करंट रन रेट आपका 10.5 का। अभी भी 2 बैट्समैन वहां पर है और ड्रॉप सीन में भावेश पवार का आना बाकी। 4 ओवर 42 रन 5 विकेट और नए ओवर को प्रारंभ करने जा रहे हैं साहिबान ने अपने पहले ओवर में 10 रन देकर 2 विकेटें हासिल की थी। तो साहिबान से वही अपेक्षा कैप्टन की रहेगी कि साहिबान उन्हें 2 विकेट और लेकर दे दे। और स्ट्राइक पर है योगेश, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है हेमंत।
और इसके साथ ही देखिए एक्सप्रेस डिलीवरी, भिवंडी की बॉलिंग का नया सेंसेशन साइबान फक्की। बहुत खूबसूरत गेंद, बहुत परफेक्ट यॉर्कर देखना चाहेंगे हम रिप्ले में। क्या गेंद थी, परफेक्ट, जिसे हम कहेंगे कि 100% गेंद थी। और डंडा कितने दूर हो रहा है, डंडा गया सैर करने, इवनिंग वॉक। नहीं, व्हाट अ डिलीवरी। मैं पता नहीं, शायद मैं गलती कर रहा हूं या नहीं, पर जो मुझे इस वक्त लग रहा है, ही इज द फास्टेस्ट बॉलर इन भिवंडी, ऐसा मुझे यहां से लग रहा है। द वे हिज डिलीवरीज आर गोइंग, इमैक्युलेट लाइन एंड लेंथ एंड शोल्डर का अच्छा इस्तेमाल वो कर लेते हैं। छोटे रनअप की बात अगर आप करते हैं तो ये देखिए परफेक्ट बॉल, नए बैट्समैन भावेश पवार और हरेश। ये जो भावेश पवार है ना, ये तो हमेशा ड्रॉप सीन में आते हैं और हीरो बन जाते हैं, और कभी कभी ये जीरो भी बन जाते हैं। और सिद्दीक भाई, आप भी आखिरी दिन को है ना कोट पहन कर आते हैं, लेकिन आज क्यों नहीं आए? नहीं, बदलते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। आपको अगर एक ड्रेस बहुत पसंद है जिंदगी भर, तो आप पहन के नहीं रह सकते। छठा विकेट, भावेश यहां पर गेंद को अच्छा जज किया था, साहिबान डायरेक्ट हिट लगाया था, अपील की जा रही है रनआउट की। फोटो फिनिश वाला क्रिकेट। अब दोनों टीमें बिल्कुल आक्रामक रवैये पर आ गई है। बिल्कुल, संदेह का लाभ हमेशा बैट्समैन को दिया जाता है। ये देखिए, मोड़ने की कोशिश की थी, यस, संदेह का लाभ हमेशा बैट्समैन को दिया जाता है। अच्छी वापसी की थी वहां पर, बल्ला बहुत जल्दी उन्होंने रख दिया था। 43 पर 6 और एक ऐसी स्थिति जहां पर दोनों टीमें लगभग 50-50% मौके पर खड़ी है। यहां से जो गेंदें बची हैं उसमें कॉमन सेंस वाला क्रिकेट अपेक्षित किया जाएगा दोनों टीमों से। इस बार फुल टॉस बॉल थी, घुमाया जरूर था, लेकिन वो आजादी नहीं मिल पाई थी और बाबा वहां पर डीप बैकवर्ड पर थ्रो करते हुए बिल्कुल बेल्स के ऊपर आता हुआ थ्रो इम्तियाज पापा के हाथों में और 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 पर 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। चवालीस पर 6, 44 दावा 6 गड़ी बाद। 5वां ओवर इस वक्त खेला जा रहा है। भावेश पवार सामना करेंगे साहिबान का। इस बार टप्पा खाते ही उठा दिया, बहुत ही बढ़िया स्लॉक स्वीप और कैप्टन शॉट, 6 रन। कहा था ना मैंने कि ये ड्रॉप सीन में आते हैं और अक्सर हीरो बन जाते हैं और कभी कभी जीरो। क्या शॉट खेला है वहां, ये देखिए, एक टांग को उछाल के खेला हुआ शॉट चंदर पॉल के अंदाज में, लेकिन बल्ले के बीचों बीच। और यहां पर साहिबान ने जो गति परिवर्तन किया था, मेरे ख्याल में उसको बहुत जल्दी पढ़ लिया था भावेश पवार ने, और वजह थी कि वहां पर मिड विकेट के ऊपर लगता हुआ ये सिक्सर की बदौलत स्कोर को और सेहत मिलेगी। और अब 50 रन पूरे होते हुए विकी स्पोर्ट्स कुकसे के बहुत ही अच्छे वातावरण में खेला जाने वाला यह सेमीफाइनल एक परफेक्ट सेमीफाइनल या परफेक्ट क्रिकेट मैच कहा जाएगा। 2 मार्च की शाम भिवंडी के इतिहास में खेला जाने वाला एक और ऐतिहासिक मैच, ऐतिहासिक मैदान और ऐतिहासिक क्रिकेट के साक्षी आप सभी ऐतिहासिक दर्शक। वाकई में दर्शकों के बिना टूर्नामेंट अधूरा है, तो दर्शक चाहिए। दर्शक जब आ जाते हैं, दर्शक के बिना मैच अधूरा है। जैसे नमक बिना भोजन, भजन बिना कीर्तन, तुलसी बिना आंगन और सिंदूर बिना सुहागन, वैसे दर्शकों के बिना टूर्नामेंट अधूरा है। सो थैंक्स टू ऑल द स्पेक्टेटर्स वर्ल्ड वाइड। इस बार क्रैकिंग शॉट, चैलेंज के मैदान की घास को आग लगाने वाला वो कारपेट ड्राइव और 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 पर पहुंचा, 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। साहिबान थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मोड में, क्योंकि अब तक इस ओवर में 9 रन आ चुके हैं और बी इंडियन किसी भी कीमत पर चाहेगी कि इसको 60 के अंदर समेटा जाए।
विकी चाहेगी कि 60 के ऊपर हो सके तो 65 तक इसको ले जाया जाए। 55 से 65 का जो रेंज है उसमें ये मैच फिनिश होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। साहिबान तैयार, छह ओवर का मुकाबला। इस बार हेमंत ने कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया है, बहुत ही बढ़िया फ्लिक शॉट, गेंद मैदान के बाहर 9-2-11। एलिगेंट ग्लांस खेला है, बैकलीफ को ऊंचा रखा था जब शॉट को उन्होंने फिनिश किया। आइए देखते हैं किस तरह से चौका लगा वो, बहुत खूबसूरत शॉट, नजाकत ज्यादा ताकत कम। ये देखिए एलिगेंट खेला था वहां पर और गेंद तेज आउटफील्ड पे सरकती हुई लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। 55 रन बने हैं 55, और उस ओवर में साहिबान ने 13 रन खर्च किए। यह अलग बात है कि उनको उस ओवर में पहली गेंद पर विकेट मिला था, और अब विकी स्पोर्ट्स कुकसे के पास 6 गेंदें बची और 6 गेंदों में ज्यादा नहीं, मैं अगर 10 रन भी पकड़ता हूं तो यह स्कोर 63 तक जा सकता है। बिल्कुल 60 के ऊपर जो भी रन बनते हैं वो चेसिंग में थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल देते हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। तो यहां पर अब आखिरी ओवर जिसको लेकर आ रहे हैं जहीर। ये टेलीकास्ट कुकसे और जामुनपाड़ा इलाकों में साफ सुथरा नहीं पहुंच रहा है, प्लीज वहां के जॉइंटर्स, कुकसे की टीम खेल रही है, इस टेलीकास्ट को पहुंचाए। जहीर को गेंदबाजी दी गई है, सामना करेंगे भावेश पवार। 2 बैट्समैन अभी भी पिच पे अच्छे बाकी और 2 अभी भी आना बाकी। नहीं, जो दोनों बैट्समैन पिच पर इस वक्त खेल रहे हैं उनके टाइमिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऐसा लग रहा है मानो एक तरफ राडो और एक तरफ रोलेक्स। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी, और बी इंडियन कोशिश करेगी कि इस टाइमिंग को किसी भी तरह से विफल किया जाए। अभी तक अच्छा प्रदर्शन बी इंडियन का, लेकिन आखिरी ओवर का प्रदर्शन ये मायने रखेगा मैच के दशा और दिशा दोनों पर। बिल्कुल 40+ के दोनों कैप्टन आपको तुरंत ही यहाँ पे रिपोर्ट करना है। ये हाफ ट्रैकर बॉल थी, गति परिवर्तन से कैप्टन को समझने नहीं दिया था। एक डॉट बॉल थोड़ा सा दबाव बनाती हुई भावेश पर। हमारे बीच में निजामपुरा पुलिस स्टेशन के सम्मानीय केदार साहब का आगमन हो चुका है। आपका हार्दिक स्वागत है और आपसे निवेदन है कि आपको सर वीआईपी मंच पे बैठना है और उसकी शोभा बढ़ाना है। अभी भी 5 गेंदें बची हैं बी इंडियन कंसोलिडेशन के प्रयास में। अब की बार वाइड बॉल थी, ज्यादा तेज करने का प्रयास और लाइन और लेंथ की सातत्यता वहां पर टूटती हुई और 1 रन का इजाफा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56, 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आखिरी विकेट जब गिरा था तब स्कोर था 42, 14 रनों की साझेदारी पवार और हरड़ के बीच में। इस बार ऑफ स्टंप की लाइन पर तेज गेंद, बिल्कुल वही लाइन वो सोच रहे थे पिछली गेंद पर करने की, लेकिन हाथ से रिलीज सही नहीं था। इस बार अच्छी वापसी। दिन की रोशनी में भी आपने देखा हरेश के अधिकांश गेंदें थोड़ी सी नीची रह रही पिच होने के बाद। इस ओवर में गेंदों को पिचअप कराते हुए गति परिवर्तन और सीधी बॉल मैदान के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए मीठा सा टाइमिंग भरा शॉट और 6 रनों का यहां पर बोनस। हरेश, फ्रंट फुट पे पुल लगाना इतना आसान नहीं होता है। ये देखिए फ्रंट लेग को गेंद की लाइन से अलग किया, पिछले पांव को बहुत लंबा खींच लिया और गजब का स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच भावेश पवार का। एक कैप्टन नॉक खेल रहे वो बड़े मैच में। पवार का पावर यहां पर और पावर भरा पवार, ऐसा हम कह सकते हैं। स्कोर इस सिक्सर की वजह से पहुंचता हुआ अब 62 रनों पर, और विकी स्पोर्ट्स कुकसे को एक अच्छा स्कोर मिला है, हेल्दी स्कोर कहा जाएगा। हालांकि कोई भी स्कोर सेफ नहीं माना जाएगा। बी इंडियन का काफी जो खिलाड़ियों का बेड़ा है उसमें बहुत अच्छे अच्छे नामी गिरामी बल्लेबाज हैं, लेकिन
इस वक्त परिस्थितियां जो है ये वाकई में विकी ने अपने पक्ष में खींची है। अच्छा टोटल, मैं कहूंगा एक ऐसा टोटल है जहां पर वो टेस्टिंग कर सकते हैं, अच्छी तरह टेस्टिंग कर सकते हैं। भादौड़ में भी हमारा टेलीकास्ट साफ सुथरा नहीं पहुंच रहा है, वहां के ज्वाइंटर से रिक्वेस्ट है कि इस टेलीकास्ट को पहुंचाए। कितनी गेंदें बची आखिरी ओवर में, ये 3 गेंदें, मैंने तो हरेश आपको कहा कि इस सीजन में चाहे सेकेंड इनिंग का आखिरी ओवर हो या फर्स्ट इनिंग का, बहुत ही इवेंटफुल रहा है। इस बार स्ट्रेट शॉट और कोई मौका नहीं जमा के लिए, स्ट्रेट 6 लगाते हुए पवार। क्या टाइमिंग था, जैसा मैंने बताया कि जिस तरह से बैटिंग कर रहे, एक तरफ राडो एक तरफ रॉलेक्स। तो क्या हरेश, मेरा कहना सही नहीं कि ये जो हवेश पवार है ना, ये ड्रॉप सीन में आते हैं और हीरो बन जाते हैं? नहीं, इस वक्त वाकई में भावेश पवार की बल्लेबाजी की काफी सराहना की जा रही है। लोग मुरीद बन चुके हैं उनके क्रिकेट के, लेकिन एक कप्तान ने यहां पर दिखाया कि जब बाकी के सब खिलाड़ी साथ छोड़ देते हैं तब वो जिम्मेदारी के साथ वहां डटकर खड़े हैं। और जो अच्छी बात, विकी स्पोर्ट्स कुक्से का भविष्य उज्जवल। 68 पर 6, 20 पर पवार। इस बार एक्सप्रेस डिलीवरी थी, ज्यादा तेज की थी जहीर ने और इस पर कोई रन नहीं बनाया। 68, मेरे ख्याल एक 8 रन ज्यादा खर्च किए हैं बी इंडियन ने अब तक। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते समय इन 8 रनों को किस तरह से उनको जल्दी जोड़ना होगा। आखिरी ऑफिशियल कॉल है, तूफान पिंपलास के कैप्टन, तूफान आया या नहीं? आ चुका है। थैंक यू। इस बार मिस टाइम किया हुआ शॉट पर, इस पर भी 2 रन बन सकते हैं। स्कोर 70 पर सिमटेगा, 71 जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे ऐसा लग रहा है। और वहां पर स्टंप्स को लगकर बॉल डिफ्लेक्ट हुई। अब ये 71वां रन और मैच जीतने के लिए जो टारगेट दिया जाएगा वो है 72 रनों का, यानी कि हर बॉल पर 2 रन बनाने हैं बी इंडियन को। 36 गेंदे 72 रन। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी पहले जयेश पाटिल की और अंत में लेटर इन द इनिंग कैप्टन भावेश पवार कैप्टन नॉक करते हुए 72 का लक्ष्य है। आइए दोस्तों, 40 प्लस का फाइनल मुकाबला ओल्डी गोल्डी का। खेलने वाली टीमें तूफान पिंपलास और गांव देवी पिंपलगढ़। ओल्डी गोल्डी क्रिकेट का फाइनल का टॉस होने जा रहा है। वहां पर हमारे कमेंटेटर हरीश पंड्या है। दोनों टीमों के कैप्टन आपको आगे जाना है। तूफान पिंपलास के कैप्टन, हवाएं चल रही है और तूफान हरीश आ चुका है। ओवर टू हरीश पंड्या। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भावे। बालाजी चषक का 2016 में जो अगला मुकाबला होने जा रहा है वो 40 साल से ज्यादा उम्र के क्रिकेटरों की जो 6 टीमों की टूर्नामेंट रही थी, उसकी 2 अंतिम मुकाबला खेलने वाली भाग्यशाली टीमों के बीच में होने जा रहा है। एक तरफ है तूफान पिंपलास और एक तरफ है गांवदेवी पिंपलगढ़। और इस मैच का टॉस करने के लिए जो हमारे सम्मानीय मेहमान है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि यहां पर आ जाए। तर नक्कीच मी या ठिकाणी विनंती करतोय, वाशेरे गावचे सन्माननीय सरपंच विश्वासजी पाटील यांना विनंती करतोय की आपण पुढील सामन्याचं नाणेफेक करण्यासाठी आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये जायचंय। वाशेरे गावचे सरपंच विश्वास पाटील आपल्यामध्ये येत आहेत। धन्यवाद मनोहर तरे। मित्रांनो, दत्त मंदिरकडे जाणाऱ्या रोडवर बाईक लागलेले आहेत आणि ते प्लीज सर्वांनी काढून घेणे, कारण सिक्युरिटी आणि आरटीओनी ही इन्स्ट्रक्शन दिलेली आहे। नाहीतर ट्रॅफिक पोलीस जी आहे ती वाहनांना टोविंग करून घेऊन जाणार आहे। दत्त मंदिरकडे जाणाऱ्या रोडवर ठेवण्यात आलेल्या सर्व जे बाईक्स आहेत ते पुढच्या 5 मिनिटात जर निघाले नाही तर टोविंग करून ते घेऊन जातील। तर वाशेरे गावचे सन्माननीय विश्वासजी पाटील, आपलं हार्दिक स्वागत आहे साहेब, सुस्वागतम, गुड इव्हनिंग। 40 वर्षावरील खेळाडूंचा सामन्यासाठी नाणेफेक होणार आहे। नाणेफेकी करत असताना शिक्क्याच्या एका बाजूला आपण बघत आहात एक प्रसन्न मुद्रेमध्ये दयानंद चोरगे या स्पर्धेचे आयोजक, मार्गदर्शक आणि भारतीय जनता पार्टीचे नेते, व दुसऱ्या बाजूला तशीच एक प्रसन्न चित्त मुद्रेमध्ये आपले खासदार कपिल पाटील साहेब हे आहेत। नाणेफेक करत असताना दोन्ही जे संघनायक आहेत त्यापैकी
एकाने कपिल किंवा दयानंद असा call घ्यावा लागणार आहे. तर माझ्यासोबत संतोष माळी, कुठला संघ? तुफान पिंपळास आणि भरत पाटील गावदेवी पिंपळगरचे संघनायक आहेत. कॉल कोण देणार आहे? तुफान पिंपळास कॉल देणार आहे. काय कॉल आहे आपला? कपिल हा कॉल आहे, बघायचा आहे. कपिल पाटील आणि कपिल पाटील. तुफान पिंपळास सर्वप्रथम अभिनंदन. काय निर्णय घेतलाय? बॅटिंग घेणार. आणि बॅटिंग करत असताना तुमच्याकडे किती प्रकारचे तुफान आहेत? 1 2 4 5 आमच्याकडे 6 फलंदाज आहेत. 6 फलंदाज आहेत. तर 4 षटकांचा हा अंतिम सामना आहे. कितीपर्यंत मजल मारू इच्छिता? 45 ते 50 रनचं टार्गेट ठेवणार. स्पर्धेला ज्या वेळेला सुरुवात झाली तेव्हा कुठेतरी वाटलं होतं की अंतिम सामना खेळायचं सौभाग्य तुम्हाला लाभेल? आम्हाला वाटलं तर की आम्ही अंतिम सामना खेळणार आणि अंतिम सामना मारणार पण. तर खूप खूप अभिनंदन तुमचं टॉस जिंकण्यासाठी. भरत पाटील माझ्यासोबत आहेत. भरत, सर्वप्रथम अभिनंदन. अंतिम सामन्यामध्ये आपण खेळत आहात. 40 वर्षावरील क्रिकेटर यांची स्पर्धा आणि त्याची नवीनता याच्याबद्दल काय म्हणायचं आहे? आता 40 वर्षाची जी स्पर्धा आहे, सुरुवातीला दयानंद चोरगे यांनीच सुरुवात केली. त्यांनी एक छोटंसं रोपटं लावलेलं, पण आज त्यांना पण ही कल्पना नसेल की त्या रोपट्याचं एवढं मोठं झाड झालं. जवळजवळ 60 टीम 40 वर्षाच्या हल्ली सध्या खेळतात. तर त्यांना याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. तुम्हाला प्रथम गोलंदाजी करायची आहे, तर 4 षटकं म्हटलं की एखादी लॉटरी सारखी क्रिकेटची सिच्युएशन असते. तर समोरच्या संघाला कितपत रोखू इच्छिता? 30 ते 35 धावांपर्यंत रोखीत. आणि आतापर्यंत जो संघ खेळलाय त्याच्यात काय बदल असणार का तोच संघ घेऊन आपण उतरणार आहात? नाही, सेम संघ. तर मित्रांनो, आताच 40 वर्षावरील खेळाडूंच्या क्रिकेट स्पर्धेचा अंतिम सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल झालेला आहे. तुफान पिंपळास या संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करायचा निर्णय घेतलाय आणि आमंत्रण दिलंय ते गावदेवी पिंपळगर संघाला प्रथम गोलंदाजी करण्यासाठी. हा सामना अर्धा तासानंतर सुरू होणार आहे. तत्पूर्वी चला एकदा वळूया बी इंडियन विरुद्ध विकी स्पोर्ट्सच्या सामन्याकडे. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद हरीश पंड्या. आइए दोस्तों, 72 का लक्ष्य है. क्या बी इंडियन हारेंगी या बी इंडियन लक्ष्य मारेंगी? हार और मार की कहानी आइए सुनते हैं इनिशियल ओवर में अजय घरत की जुबानी. बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीक भावे. एक बार फिर से सभी दर्शकों को अजय घरत का प्रणाम. 72 रनों की चुनौती है 6 ओवर्स में मुकाबला जीतने के लिए बी इंडियन के सामने. दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला बालाजी चषक 2016 का सिटी क्रिकेट से, और बहुत ही बड़ा मैच है. बी इंडियन और विकी स्पोर्ट्स कुक्से के बीच में शानदार पारी खेली कप्तान भावेश पवार ने, उदाहरण देकर नेतृत्व करते हुए अपनी टीम का, और इसीलिए कहीं ना कहीं सीजन में विकी स्पोर्ट्स कुक्से चोटी पर भी रही है. बिल्कुल, कप्तान जब फ्रंट पे आके लीड करता है तो टीम का उत्साह बढ़ जाता है. दोनों भी सलामी बल्लेबाज 72 रनों का लक्ष्य लेकर मैदान में पहुंच चुके हैं. दानिश और जमा. ये अक्सर हम देखते हैं जब भी विकी स्पोर्ट्स कुक्से और बी इंडियन का मैच होता है तो दानिश को काफी ऊपर भेजा जाता है. इसके पीछे रणनीति ये हो सकती है कि विकी स्पोर्ट्स कुक्से के पास बायत के गेंदबाज मौजूद है और इसीलिए दानिश को ऊपर भेजा जाता है. कई मर्तबा हमने ये रणनीति विकी स्पोर्ट्स कुक्से की ओर से भी देखी है. जब उजैर गेंदबाजी करते हैं तो सुरेश पारदी को ऊपर भेजते हैं, लेकिन आज वैसा नहीं हुआ. बिल्कुल, बड़े मैच है और बड़े मैच की बड़ी प्लानिंग रहती है. देखना है कि गेम प्लान जहां ए फेल जा चुका है, बी इंडियन का गेम प्लान बी को जो यूटिलाइज किया है वो चलता है या नहीं. एक रनों की बड़ी इमारत उनको हासिल करनी है. नींव मजबूत रखनी पड़ेगी. जो बुनियाद है वो बहुत ही शानदार रखनी पड़ेगी बल्लेबाजों को. मनोज भोईर हमेशा की तरह पहला ओवर लेकर तैयार. पारी की पहली गेंद लेकर आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड एंड से. एक बैकवर्ड पॉइंट और एक शॉर्ट थर्ड मैन दानिश के लिए. पारी की पहली गेंद बहुत बाहर जाने दिया, विकेट कीपर से रुकी नहीं थी और डायरेक्ट हिट शायद वहां पर लगा है.
एक सवाल हल्की सी आ निकली थी खिलाड़ियों के मुंह से, लेकिन पहुंच गए थे बैट्समैन, वाइड का इशारा। ये देखिए, मैच बड़ा रहता है, उसका टेम्परामेंट बड़ा रहता है, उसका प्रेशर बड़ा। मनोज भोईर जो बहुत ही इकोनॉमिकल गेंदबाज है, रॉन्ग वन कर बैठे दूर वाइट के रूप में। बिल्कुल सही निर्णय था अंपायर का, काफी अंदर आ गए थे बैट्समैन। पहली गेंद लूजनर हो गई, ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है। दो रन बिना किसी नुकसान के भी इंडियन। दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी है क्रीज पर जमा, इस समय सामने है मनोज भोईर के। बहुत ही लेट खेला है, बहुत खूबसूरती के साथ खेला है, बल्ले का फेस खोलते हुए। ये चतुराई भरा क्रिकेट है और इसके लिए जमा काफी मशहूर है। बिल्कुल धीमी आई थी गेंद, काफी इंतजार किया था गेंद के आने का। तिरछे बल्ले से गेंद को केवल दिशा दी थी। जयेश पाटिल की अच्छी फील्डिंग, मुस्कुराते हुए एंजॉय कर रहे हैं कहीं ना कहीं गेम को। बहुत से दर्शकों के बीच में खेलने का दबाव भी रहता है, लेकिन उतना ही मजा भी रहता है। दूर दूर तक फैलाया हुआ क्षेत्ररक्षण पहली ही गेंद से केवल 2 फील्डर्स घेरे के अंदर नजर आ रहे हैं। इस बार खेलने की कोशिश नहीं की, बहुत अच्छी तरीके से विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया था। डॉट बॉल। मनोज भोईर काफी इकोनॉमिकल गेंदबाज रहे हैं। हालांकि वकीसपुर मापोली के बैट्समैनों ने पहले ही ओवर में उन पर धावा बोल दिया था सेमीफाइनल में बाली ट्रॉफी के। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बायत के बैट्समैन के लिए। लोअर फुल टॉस उठा के खेला है, बढ़िया कोशिश फील्डर की, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए वहां पर जयेश पाटिल। बहुत बढ़िया कोशिश, अपने आप को झोंक दिया था वहां पे जयेश पाटिल ने, और गेंद भी पीछे नहीं गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिर्फ 1 रन बना। ये देखिए, बहुत बढ़िया कोशिश, चौका हालांकि मौका जरूर दिया लेकिन चौका नहीं दिया। जी हाँ, दुविधा में कभी कभी ऐसे में फील्डर रह जाते हैं कि कैच के लिए जाए या फिर गेंद को रोके, ऐसे में चौका चला जाता है। बिल्कुल, आई थिंक देयर इज अ टफ चांस एंड हाफ चांस। बहुत मुश्किल चांस था। ये देखिए, पूरी कोशिश की थी उन्होंने। इस बार गेंद को उछाल दिया है, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, आसान सा कैच, पहला विकेट गिरता हुआ भी इंडियन का। प्लीज आप जितना चाहे एंजॉय कीजिए। यहाँ पर हमारे केदार साहब बैठे हैं, वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि पटाखे ना बजाए, एग्जामिनेशन बाजू में चल रहे हैं। हमारे केदार साहब निजामपुरा के बैठे हुए हैं, आपसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया आप एंजॉय कीजिए लेकिन पटाखे ना बजाए और कोई गलत स्लोगन ना दे। महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगती हुई मनोज भोईर के। आगे रखा था गेंद को, लगभग हाफ वॉली बन रही थी, एक आमंत्रण दिया था जानबूझकर बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए, ये देखते हुए कि बड़ा स्कोर खड़ा किया है उनकी टीम ने। और जो इलाका बैट्समैन ने चुना था डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन पर, जहां पर संभव था चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड की सबसे लंबी बाउंड्री है, कप्तान भावेश पवार मौजूद थे और उन्होंने कोई गलती नहीं की। पहला विकेट 4 के स्कोर पर। अब वहां पे हमारे पुलिस कर्मी पहुंच चुके हैं, उनको आपको सहयोग करना है। नए बैट्समैन साइबान फकी आए हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर। स्ट्राइक इस समय दानिश के पास। विकेट की खुराक प्राप्त करने के बाद मनोज भोईर दुगने उत्साह के साथ तैयार होते हुए। दानिश का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा इस मैच में। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड।
शफल करते हुए खेलने की कोशिश, देखना है बैट से है या नहीं। एक रन दौड़कर पूरा किया, वाइड का इशारा आता हुआ। 2 अतिरिक्त रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर बी इंडियन का 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जो रिक्वायर्ड रेट है वो ठीक 12.00 का है। ये तो शुरुआती क्षण है मैच के, इस पारी के। ये देखिए लेग स्टंप के बाहर निकल रही थी, सही निर्णय अंपायर अमर मोहत्तो का। बिल्कुल, लिमिटेड ओवर मैचेस में अगर 1 इंच भी गेंद मिस करती है तो वाइड घोषित किया जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो मार्जिन फॉर एरर होता है गेंदबाजों के लिए वो बहुत कम होता है। गलतियां करने की जो आजादी होती है वो बहुत कम रहती है गेंदबाजों के लिए। इस बार काफी जगह दे बैठे थे, डीप कवर की तरफ ड्राइव करते हुए खेला है। केवल 1 रन लेने का अवसर। फील्डर काफी तेजी से झपटे थे हेमंत हरड। 1 से बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। साझेदारियों का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है क्रिकेट के खेल में। सिद्दीक भाभी, भले वो 6 ओवर का मैच हो, 60 ओवर का हो, 50 का हो या फिर 20-20, यदि आपकी साझेदारियां अच्छी हो पाती है तो आप बड़े स्कोर की तरफ बढ़ सकते हैं। अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर एक बार फिर से मनोज भोईर। पूरी तरह से छकाया वहां पर बल्लेबाज को, विकेट कीपर तक बीट हुए। 1 रन लेग बाय के रूप में बहुत ही शानदार ओवर समाप्त होता हुआ मनोज भोईर का केवल 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल, पहले ओवर को अगर हम आगे देखते हैं तो फिर पिछड़ती हुई बी इंडियन आस्किंग रन रेट से। थँक्यू कॉमेंट्री बॉक्स. आजच्या स्पर्धेसाठी उपस्थित मान्यवरांचं व्यासपीठावर हार्दिक स्वागत आहे. सन्माननीय या ठिकाणी उपस्थित केदार साहेब, आपलं बालाजी चषक 2016 मध्ये हार्दिक स्वागत आहे. वाशेरेचे सन्माननीय सरपंच विश्वास पाटील साहेब, आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे. तसेच डॉक्टर जयेश पाटील साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. सामाजिक कार्यकर्ते बळीराम पाटील साहेब, तसेच समाजसेवक सुनील गोरे व पिंपळगडचे समाजसेवक बाबुलनाथ शेळके, आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम. थँक्यू. ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स अजय गरत. थैंक यू मनोहर तरे. 5 ओवर का खेल अब बचा है इस मैच में. यहां से और 64 रनों की जरूरत है बी इंडियन टीम को मुकाबला जीतने के लिए, फाइनल में प्रवेश करने के लिए. बालाजी चषक 2016 का आनंद लेते हुए ये तमाम मेहमान, वीआईपी डाइस का ये नजारा बहुत ही खूबसूरत समा है. आसमान में हल्के फुल्के सफेद बादल यहाँ पर ऐतिहासिक चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर. और इस समय जो रोशनी है वो थोड़ी सी कम होती हुई मध्यम मध्यम रोशनी ग्राउंड में. दानिश कुछ सोचते हुए अब अपना स्टांस लेते हुए. सुरेश पारदी को अटैक पर लाया गया है. ठीक तरह से संपर्क नहीं बना पाए. गेंदबाज खुद जा रहे हैं गेंद को फील्ड करने के लिए. 1 रन मिलता हुआ. ज्यादा आत्मविश्वास नहीं झलक रहा है बल्लेबाजी में. बिल्कुल, लेंथ गेंद थी और उसे ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी. लिविंग एज लगा था 1 रन पूरा करते हुए वहां पर. अभी तक दोनों भी गेंदबाजों ने जो गेंदबाजी की है उसमें ये एक बात देखने में आई है कि दानिश को ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर खिलाने की कोशिश हो रही है. अंपायर का जो भी निर्णय है वो अंतिम रहेगा. अंपायर से कोई भी खिलाड़ी आर्गुमेंट नहीं करेगा. दोनों टीमें जो इस वक्त खेल रही है, बालाजी स्पोर्ट्स का एक अनाउंस सुनिए. अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा. इस समय स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर. उमा चौहान हमारे बीच में आते हुए, मैजिक ऑफ भिवंडी, आपका हार्दिक स्वागत है.
इस बार फुलर लेन गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास पूरी तरह से बीट हुए साइबान फक्की। स्ट्रोक सिलेक्शन कहीं ना कहीं गलत नजर आ रहा है वहां पर। बिल्कुल फुटवर्क साथ नहीं दे रहा है। हमारे बीच में निजामपुरा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर सुरेश यादव साहब का आगमन हो चुका है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, सुस्वागतम। और उनसे निवेदन है कि आपको हमारे वीआईपी मंच की शोभा बढ़ाना है। सुरेश पारदी एक बार फिर से फेमस आशा पाटिल नॉस्टन एंड से एक और फुलर लेन गेंद ड्राइव किया है। इस बार बहुत ही आत्मविश्वास भरा ड्राइव, खराब फील्डिंग लेकिन अच्छा बैकअप वहां पर कर रहे फील्डर। डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की तरफ 2 रन इसी बीच दौड़कर पूरे किए गए। बिल्कुल फुलर लेन गेंद थी और बैकलीफ को नीचा करके जमीन के सहारे बहुत खूबसूरत ड्राइव खेला था वहां पर साइबान फक्की ने। आइए देखते हैं किस तरह से शॉट खेला था। अच्छा बैकलिफ्ट था, नीची बैकलिफ्ट से बिल्कुल विराट कोहली जिस तरह के शॉट्स खेलते हैं। तेज गेंदबाजी हो रही है, एन वक्त पर बल्ला नीचे लाए थे बैट्समैन। पुलटॉस गेंद, बेहतरीन शॉट, सिक्सर। आखिरकार एक कनेक्ट कर ही लिया वहां पर बैट्समैन ने। थँक्यू कॉमेंट्री बॉक्स. तर नक्कीच व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. निजामपुरा पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सन्माननीय सुरेश जाधव साहेब, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम. बालाजी चषक 2016 मध्ये आलेल्या तमाम सर्व रसिक प्रेक्षकांचं, खेळाडूंचं व सन्माननीय पाहुण्यांचं सन्माननीय दयानंद चुरगे साहेब, मोतीरामजी चुरगे साहेब आणि बालाजी स्पोर्ट्सच्या वतीने सस्नेह मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. Yes, that was a juicy full toss, put away very easily over mid wicket for 6. इस बार बॉलर की सिर के ऊपर से उठाकर खेला है सिर्फ 1 रन के लिए। जो छक्का लगा है उससे बहुत हद तक बल्लेबाजों के ऊपर से प्रेशर कम हो गया है और यही एक जरिया है प्रेशर को कम करने का कि बीच बीच में बाउंड्रीज उनको हासिल करनी है। स्कोर इस समय 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर 72 रनों का पीछा किया जा रहा है बी इंडियन टीम द्वारा। क्रिकेट से अपने आप को दूर रखना काफी मुश्किल होता है। बहुत ही बेहतरीन गेंद थी सुरेश पारदी की, तेज तर्रार पैरों के बीच में से निकल गई विकेट कीपर के पास। समाप्त हुआ दूसरा ओवर, बी इंडियन 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब वक्त हो रहा है कमेंट्री में परिवर्तन का। आने वाले कुछ ओवर्स के लिए आपके साथ रहेंगे सिद्दिक भाबे और हरीश पंड्या। बहुत बहुत धन्यवाद अजय गरत। 2 ओवर 18 रन और 1 विकेट और 4 ओवर में जीतने के लिए 54 रन चाहिए। जो आस्किंग रन रेट है हरीश वो काफी बढ़ चुका है। यहाँ पर सिद्दिक, अब जो 4 ओवर बचे हैं उसमें हर ओवर में एक बड़ा शॉट आना बहुत जरूरी, कम से कम एक, जितने ज्यादा है उतने अच्छे हैं, पर एटलीस्ट 1, इधर अ 6 और 4, जिसकी बदौलत वो जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको नियंत्रण में रख पाए। बी इंडियन को एक ओवर ऐसा भी चाहिए या तो फिर कि जिसमें 15 से 20 रन बन के आ जाए। दैट विल हेल्प देम टू बाउंस बैक। अभी तक वो मौका मिला नहीं है क्योंकि विकी स्पोर्ट्स कुक्से की गेंदबाजी काफी अनुशासन भरी नजर आ रही है। ये देखिए 40+ की टीम और वहां पर हमारे निजामपुरा के साहब केदार साहब भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं हमारे भाई। और तीसरा ओवर काफी निर्णायक रहेगा। यहाँ से बी इंडियन रनों की तरफ जाने की कोशिश करेंगी और विक्की विकेटों की तरफ। ये देखिए सीनियर इंस्पेक्टर माननीय श्री सुरेश यादव जी मैच का मजा लेते हुए वीआईपी डाइस से। भावेश पवार पहली गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया है पॉइंट पर। बढ़िया फील्डिंग, तेज थ्रो, बीमार गेंद और 9 बॉल। फ्री टब मिलेगा और ये 83वां फ्री हिट है, नया कीर्तिमान बना है। अभी अभी बी इंडियन ट्रॉफी का कीर्तिमान बाली में टूटा, 58 फ्री हिट और ये 83वां फ्री हिट। भावेश पवार बीमर गेंद के साथ अब फ्री हिट की गेंद करने के लिए तैयार। हरीश क्या कहेंगे? नक्कीच मित्रांनो, या ठिकाणी आता थोड्याच वेळात माजी केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेश अध्यक्ष सन्माननीय रावसाहेब दानवे यांचे सुपुत्र
सन्माननीय संतोषजी दानवे साहेबांचं आगमन थोड्याच वेळात या स्पर्धेच्या ठिकाणी होणार आहे. नक्कीच सन्माननीय दानवे साहेबांचं बालाजी चषक 2016 मध्ये सस्नेह मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. भोकरदन विधानसभेचे एक लोकप्रिय आमदार आहेत आणि रावसाहेब दानवे साहेबांचे सुपुत्र सन्माननीय आमदार संतोषजी दानवे साहेबांचं थोड्याच वेळात आजच्या स्पर्धेमध्ये आगमन होत आहे. पुनश्च एकदा दानवे साहेब आपलं भिवंडी नगरीमध्ये तसेच बालाजी चषक 2016 मध्ये सस्नेह मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. थैंक यू. ओवर टू कमेटी बॉक्स. धन्यवाद मनोहर तरे. अब रन जो बने 20 है, फ्री हिट है, और अगर यहाँ से हम कहें तो कुल 24 गेंदों में 52 रन. अब ये जो गेंद है इस पर किस तरह से खेला जाएगा बैट्समैन दानिश द्वारा. दानिश ने कल अच्छा योगदान दिया था. पहले 2 ओवर्स में काफी खूबसूरत बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया था. देखिए इस बार इस गेंद पर कुछ होना बहुत जरूरी बी इंडियन के लिए. भावेश पवार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. दानिश के लिए हुक कर दिया है. गेंद जा रही है डीप फाइनल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. यही खासियत है बी इंडियन की और विक्की स्पोर्ट कुक्से की. दोनों टीमें ना आसानी से मैच खुद के पक्ष में करती है, ना आसानी से हारती. नहीं, इस वक्त देखिए आप कैप्टन भावेश पवार ने वहां पर शॉर्ट पिच गेंद की थी और दानिश ने उसका बराबर से स्वागत किया चौका लगाकर. भावेश पवार दानिश के लिए विद टाइट खेला है गैप में. बहुत बढ़िया फील्डिंग. 3 रन बचाए हैं कुमार ने अपनी टीम के लिए. गजब का क्षेत्र रक्षण. जब जैसा मैंने पहले भी बताया कि दोनों टीमें जब आपस में ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रेंथ से टकराती है, फील्डिंग विल डिसाइड द रिजल्ट ऑफ द मैच. तो यहां पर हर रन बेशकीमती है. दानिश कोशिश कर रहे हैं लगातार शॉर्ट पिच गेंदों को, लेकिन वो मैदान के बाहर नहीं भेज पाए थे उस गेंद को. और यहां पर अब परिस्थितियां जो है अभी भी मैं समझ रहा हूं दोनों टीमों के लिए समान सी नजर आ रही है. पवार मुड़ते हुए साहबान को ब्लॉक होल्ड में गेंद थी. बैकलीफ को नीचा किया, ड्राइव किया कारपेट के सारे. वाइड ऑफ डीप मिड ऑन. शेखर के पास 1 रन. स्कोर बी इंडियन का आगे बढ़ता हुआ 26 रन 1 विकेट गंवाने के बाद. आपकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, पहले बैटिंग करते हुए विकी स्पोर्ट्स कुक्से ने पहले 3 ओवर में 26 रन बनाए थे, जो बी इंडियन ने अब तक 2.5 ओवर में बना लिए. लेकिन आखिरी 3 ओवर में उन्होंने रनों की रफ्तार को बढ़ाया था. और मेरे ख्याल में फर वाली टेनिस बॉल पुरानी होने के बाद अब यह सही मौका है बी इंडियन के लिए पलटवार करने का. दानिश ने हुक कर दिया है. गेंद जा रही है डीप फाइनल बाउंड्री के बाहर. देखने अंपायर का इशारा. 4 रन. अब मौका नहीं था. बहुत फाइन खेला था वहां पर. और भावेश पवार काफी छोटी गेंदें कर रहे हैं. और क्या वजह हो सकती है? लगातार हाफ ट्रैकर गेंदें, मतलब लगभग हिटिंग द डेक उस तरह का वो बॉलिंग का प्रदर्शन करना चाह रहे हैं. और दानिश वहां पर शुभ संध्या कहते हुए आए हुए हर आमंत्रण का उन्होंने स्वीकार किया है. और वो शॉर्ट पिच गेंद पर आने वाला चौका ये शाम को पॉपकॉर्न और चाय के जैसा हल्का फुल्का मस्त करने वाला. भावेश पवार फिर से गेंद को लिफ्ट कर दिया है. आर पार मैदान के बाहर 6 रन. तो बिल्कुल दानिश जहां पर उनका घर है उस दिशा में बैठे हुए दर्शकों को बल्ला दिखाते हुए दानिश स्टिल नॉट फिनिश. बिल्कुल भावेश पवार ने जो काम आखिर में किया था, दानिश वो काम आप करते हुए जिस काम के लिए भेजा था, चला तो मटका नहीं तो झटका. लेकिन ये जो शतरंज का मोहरा भेजा था, अब कैश होता हुआ. बिल्कुल यहां पर अब मोमेंटम को ला दिया है दानिश ने. 36 बन गए. देखिए तीसरा ओवर अभी तक खत्म नहीं हुआ और आधा स्कोर हो गया है. दिस इज हाउ यू कम बैक इन द मैच. यही खासियत है. जयेश पाटिल को दिखाया जा रहा है अब थोड़ा सा परेशान अपने दाईं और बाईं ओर जाते हुए. हालांकि मुकाबला अभी भी बराबरी पे चल रहा है. ने वाकई में दानिश ने इस ओवर में रन बनाकर बी इंडियन को मैच में वापस ला दिया है. बी इंडियन इज बैक. बिल्कुल अच्छी वापसी की है वहां पर बी इंडियन ने. यही खासियत है. इसीलिए तो तालुका क्रिकेट में कभी दोनों नंबर 1 पे रहते हैं, तो कोई आगे तो कोई पीछे.
इसीलिए तो मैंने कहा था कि सेमीफाइनल में छुपा हुआ फाइनल आप देख रहे हैं। इस मरतबा गेंद ने अंदरूनी सिरा लिया, बढ़िया फील्डिंग वहां पे कुमार की, एक रन बनता हुआ। बहुत अच्छी फील्डिंग, दबाव की स्थिति में इस तरह की फील्डिंग आसान नहीं रहती है। और खास करके चैलेंज के मैदान पर थर्ड मैन और फाइन लेग, यहां पर फील्डिंग करना ये मतलब जेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली बात थी। वहां से कोई भी गलती हो नहीं सकती। और जिस तरह से अब इस मैच में वापसी की है बी इंडियन ने, बचे हुए 3 ओवर में अब मैच जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत, और बहुत ही इवनली इस मैच को इस वक्त तराजू में तोला जा रहा है। बिल्कुल नेक टू नेट फाइट, कांटे की टक्कर चलती हुई, कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं। 3 ओवर में 37 हुए हैं और 3 ओवर में 35 रन चाहिए। एक बात को हमें और भूलना नहीं होगा कि केवल 1 विकेट गया है, ओनली 1 विकेट लॉस्ट। दे हैव कपल ऑफ हार्ड हिटिंग बैट्समैन वेटिंग फॉर देयर टर्न टू कम। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यहां पर जो 3 ओवर बचे हैं उसमें जो चेंज बॉलर के रूप में जो आएंगे उनके लिए थोड़ी सी अग्नि परीक्षा रहेगी। बिल्कुल सुरेश पारदी को कंटिन्यू रखा गया है क्योंकि भावेश पवार नहीं चले। सुरेश पारदी ने पिछले ओवर में कितने रन दिए थे? 10 रन दिए थे। भावेश ने 19 दे डाले। नहीं, बिल्कुल वाकई में जैसा आपने बताया, बल्लेबाजी में तो ड्रॉप सीन में आए और हीरो बन गए, लेकिन जब गेंदबाजी में आए तो बी इंडियन को ड्रॉप में से टॉप पर ले आए। बिल्कुल, मैंने उनसे सवाल किया था कि कल भी आपने गेंदबाजी अच्छी नहीं की थी, बड़ा मुकाबला है, बड़े मैच के खिलाड़ी है। उन्होंने आशा जताई थी कल उनका दिन नहीं था, आज जरूर अच्छी गेंदबाजी करेंगे। बहरहाल क्रिकेट इसमें उतार चढ़ाव खिलाड़ियों के साथ भी लगा रहता है और टीमों के साथ भी। कभी किसी का दिन ही रहता है और कभी किसी के लिए दिन वाकई में रात की बराबर रहता है। सुरेश पारदी लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, इस मरतबा फुलर लेंथ की गेंद, बढ़िया गेंद, और डायरेक्ट अगर निशाना लग जाता तो फिर दानिश को लौटना होता। वाकई में अजय भोईर ने जब थ्रो किया, दानिश एक पल के लिए उनकी सांसें अटक गई थी। अजय भोईर गेंद को उठाकर किस तरह थ्रो कर रहे हैं अभी आपके टीवी मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है। बहुत परफेक्ट गेंद थी, स्विंगिंग गेंद थी, यॉर्कर लेन की, बल्ले के जड़ से टकराई थी, बॉटम ऑफ द बैट। हेमंत कुमार का गाना अजय भोईर के लिए, जरा नजरों से कह दो तुम निशाना चूक ना जाए। इस मरतबा तेज तरार गेंद, दिशा में भटके, वाइट। अगर ये वाइड है तो वाइड है। अब खेल आगे बढ़ता हुआ। 38 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। द लाइन इज बिलोंग टू अंपायर। 38 रन 1 विकेट गंवाने के बाद बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए उनकी गेंदें अब रॉन्ग वे, जो स्पेशल गेंद रहती है बाएं हाथ के गेंदबाज की, वो कर रहे हैं। पेस और क्यूरियस गेंदबाजी हो रही है। आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न से मुड़ते हुए, सुरेश पारदी दानिश के लिए, ये लगा आसमानी छक्का। और इस बार जो सिक्सर खेला था, तबीयत खुश करने वाला, दिल खुश सिक्सर, केवल टाइमिंग के बलबूते पर जैसे ही गेंद आई उसके ऊपर 6 अक्षर लगा दिए, DANISH। आणि नक्कीच या ठिकाणी थोड्याच वेळात आगमन होत आहे, शुभागमन होत आहे। मी जे गेट मेन गेट जवळ जे सिक्युरिटी त्यांना विनंती करतोय, थोड्याच वेळात या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्याचे जबरदस्त नेतृत्व जयेश पाटिल के ऐसी मर्तबा सन्माननीय संतोषजी दानवे साहेबांचं आगमन होणार आहे। पर गेंद कर रहे। मी विनंती करतो मेन गेट जवळ जे सिक्युरिटी आपण तयार राहायचं आहे। बिल्कुल, बहुत फाइटर क्रिकेटर है जयेश पाटिल, और कितने नाराज हैं कि किस तरह से उन्होंने गेंद की, वो भी लेग स्टंप पर। यहां पर सिद्दीक एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा कि दानिश जो है ये चुनौती के लिए तैयार है। वहां पर कभी कभी क्रिकेट में एक मुहावरा है कि व्हेन गोइंग गेट्स टफ द
टफ गेट्स गोइंग, और बिल्कुल रफ एंड टफ क्रिकेट इस वक्त दो टीमों के बीच में। खेल की शुरुआत होती हुई स्कोर इस वक्त 44 रन, एक विकेट गंवाने के बाद चौथा ओवर चल रहा है। यहां से कितने रन चाहिए आसिफ रंगरेज? 28 रन चाहिए बची हुई 16 गेंदों में। बहुत ही अच्छी वापसी यहां पर दानिश आज उनके लिए गेम को फिनिश करेंगे, ऐसी आशाएं नवपल्लवित होती हुई बी इंडियन के लिए। और यहां पर बहुत नाजुक स्थिति से गुजरता हुआ ये मैच, जो स्कोर चाहिए था वो मिल गया है कुछ अंश तक। अब रन और गेंदों के बीच में केवल 12 का फर्क है, यानी कि दो बड़े शॉट्स अगले 16 गेंदों में कभी भी लगाना है और बॉल टू बॉल इक्वेशन तक भी इंडियन आ जाएगी। दूसरी ओर विकी स्पोर्ट्स कुक से इस बात को रियलाइज नहीं कर पा रही है कि अगला विकेट कितना जल्दी निकाला जाए, क्योंकि एकमात्र विकेट गिरा था जब स्कोर था 4 और देखते ही देखते पार्टनरशिप 40 रनों की। सुरेश पारदी लेफ्ट आर्म राउंड विकेट दानिश के लिए, एक और गेंद आर पार मैदान के 6 रन। फानुस बन के हिफाजत जिसकी हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। क्या शॉट खेला है, तबीयत खुश करने वाला सिक्सर। तमाम खिलाड़ियों से ये बालाजी की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आपको खेल को जिंदा रखना है, स्पोर्टमैन स्पिरिट के तहत खेल खेलना है और देखना है। दानिश वन मैन शो। मुझे याद है बहुत साल पहले सिद्दीक भाई मुंबई में एक वन मैन शो हुआ करता था, बब्बन खान के अदरक के पंजे, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। आज दानिश आप देखें बिल्कुल अकेले और बिना कोई थकान, बिना कोई शिकन उनके चेहरे पे। ही इज अ फाइटर। अंपायर का जो भी निर्णय रहेगा वो अंतिम रहेगा। बालाजी स्पोर्ट्स का कहना है कि कोई भी अंपायर तो आयोजक बालाजी स्पोर्ट्स ने यहां पर 2 रन की पेनल्टी विकी स्पोर्ट्स कुकसे पर कायम की है। स्कोर हुआ है 52। और दानिश आपको भी बालाजी स्पोर्ट्स की तरफ से इंस्ट्रक्शन है, आप अपना खेल खेले, किसी खिलाड़ी के लिए नहीं खेल रहे, आप अपनी टीम के लिए खेल रहे। बालाजी स्पोर्ट्स का कहना है अच्छा खेल खेले। पंद्रह गेंदों में अब 20 रन चाहिए। इक्वेशन थोड़ा सा आसान होता हुआ। यस, यहां पर मुझे कुमार सानू का गाना याद आ रहा है, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी। तो यहां पर 52 हुए हैं और 20 बनने बाकी। बिल्कुल 7:30 बजे हमको मेगा फिनाले खिलाना है। इसके बाद 4-4 ओवर के 2 मुकाबले, 40+ का फाइनल और ग्रामीण का फायनल। आणि नक्कीच मित्रांनो काही क्षणातच म्हणजे बक्षीस वितरण समारंभासाठी या ठिकाणी शुभागमन होणार आहे। माजी केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय रावसाहेब दानवे यांचे सन्माननीय सुपुत्र, भोकरदन विधानसभाचे सन्माननीय आमदार संतोषजी दानवे साहेबांचं आपल्या पारितोषिक वितरण समारंभाच्या वेळा आगमन होणार आहे। सन्माननीय पाहुण्यांचं भिवंडी नगरीमध्ये बालाजी चषकामध्ये हार्दिक स्वागत आहे।
और दोनों टीमों के कैप्टन इस बात को सुन ले, बालाजी स्पोर्ट और जीतू मानेरकर की तरफ से, अगर दोनों टीमों अगर कॉपरेट नहीं किया और कोई ऐसी हरकत की तो अगला जो बालाजी चषक है उसमें जीतू मानेरकर और बालाजी स्पोर्ट्स का कहना है कि फिर उस टीम को नहीं लिया जाएगा। खेल की शुरुआत होती भी सुरेश पारदी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जा रहे, बहुत अच्छी गेंद, फुलर लेंथ की गेंद थी, 1 रन पूरा होता हुआ, स्कोर 53 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। बहुत ही जबरदस्त वापसी बी इंडियन द्वारा। अभी तक एकमात्र विकेट गिरा है और दानिश ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। दानिश का निजी स्कोर हो गया है अब 31 रन और एक मैच विनिंग पारी जिसको कहा जाएगा अगर बी इंडियन फाइनल में पहुंचने में कामयाब होती है। 14 गेंदों में 19 रन चाहिए फाइनल में पहुंचने के लिए। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, बैकलीफ को नीचा किया लेकिन निशाना चूक गए, वहां पर रन पूरा, दूसरे के लिए पलटना चाहते थे और दानिश आउट। अब क्या वाकई में इसकी जरूरत थी? देखिए किस तरह से विकेट गिरा है। बिल्कुल वाकई में इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन क्रिकेट में अगर और मगर को कोई जगह नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन यही तरीका था जहां पर आउट हो सकते थे दानिश। बहुत ही सही समय पर यह विकेट हासिल हुआ है और दानिश थोड़ा सा जो उनका रिएक्शन टाइम था धीमा था। देखिए किस तरह यह विकेट गिरा, सहबान वहां पर पुश किया था, 50 रनों की भागीदारी खत्म हुई। देखिए किस तरह से ये गेंद और अजय ने स्टंप्स बिखेर दिए। अब प्राइज विकेट, फाइनल में पहुंचने का पासपोर्ट और वीजा मानो हासिल किया हो। जे प्रेक्षक गॅलरीमध्ये रसिक प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती असेल खाली बसून मॅच बघा, एकदम साइडला येऊ नका तुम्ही, खाली बसून मॅच बघा। बिल्कुल डेंजर जोन में ना बैठे प्लीज, आपके गिरने की संभावना हो जाएगी। ऊपर से दुनिया बहुत हसीन नजर आती है लेकिन गिरने का भी डर रहता है। 13 गेंदे 18 रन। हरेश, सेमीफाइनल की सबसे कीमती गेंद डालने जा रहे हैं सुरेश। 13 गेंदे 18 रन। सुरेश पारदी सामना करेंगे मैन ऑफ क्राइसिस मतीन। पारदी मुड़ते हुए मतीन के लिए, इस मरतबा स्वीप कर दिया है, बढ़िया फील्डिंग वहां पर, सिर्फ 1 रन। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 55 रन। 2 ओवर में 17 चाहिए। सबसे बड़ा मुकाबला, तालुका की सबसे बड़ी 2 टीमें और सबसे बड़े 2 ओवर, सबसे बड़े कमेंटेटर हरीश पंड्या। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक बाबे। बालाजी चषक 2016 में पधारे हुए तमाम दर्शकों का चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर हार्दिक स्वागत है। जो दर्शक आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड, जो दर्शक हमारे आर पाटिल पेविलियन के नीचे आशा पाटिल साउथ गैलरी और सामने स्टैंड में बैठे हैं, सभी का स्वागत। टीवी पर देख रहे हमारे तमाम दर्शकों का स्वागत। यूट्यूब और tenniscricket.in के जरिए हमारे टेक सेवी जो दर्शक है उनका भी हार्दिक स्वागत। 12 गेंदों में 17 रन, 5 का फर्क है, एक बड़ा शॉट और ये बॉल टू बॉल इक्वेशन आ जाएगा। बी इंडियन एक चमत्कार यहां पर करिश्माई बल्लेबाजी करने जा रही है। अब तक दानिश ने आज जो पारी खेली 31 रन बनाए, जमा जल्दी आउट हुए थे। सहबान ने एक अच्छी पारी खेली है 13 रनों की और मतीन अभी अभी आए हैं और अपना खाता खोला है। 12 गेंदों में 17 रन चाहिए, 55 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। और मनोज भोईर वहां पर कुछ हिदायतें देते हुए कि भाई किस तरह से अब इस ओवर में गेंदबाजी करनी है। दायरे के बाहर के तमाम दर्शक जो हैं बिल्कुल उत्साहित। इस बार बढ़िया गेंद थी, टप्पा खाकर नीचे रही है। भावेश पवार की खासियत, अच्छी वापसी करते हुए कैप्टन, थोड़ा सा उनके दाएं पैर में शायद चोट आई है, इज लिंपिंग। देखिए मांसपेशियों में थोड़ा सा खिंचाव, बिल्कुल क्रैम्प्स महसूस कर रहे हैं वहां पर वो, लेकिन अच्छी गेंद से स्टार्ट की।
बहुत ही फाइटर क्रिकेटर हैं, बहुत कूल क्रिकेटर हैं, अच्छे कैप्टन हैं। 11 गेंदों में 17 रन और अब यहां पर थोड़ा सा तकलीफ महसूस करते हुए 11 बॉल्स एंड 17 रन्स। आप देख रहे हैं बालाजी चषक का 2016 आज आखिरी शाम का क्रिकेट। हमारे साथ में बैठे हैं उमेश चौहान जो कि चैलेंज के एक आधार स्तंभ और फाउंडर मेंबर। चैलेंज का ये खूबसूरत मैदान, ऐतिहासिक मैदान कहूंगा, जहां पर क्रिकेट ने अपना सबसे कीमती वक्त देखा है। सिद्दीक, एक बात तो पक्की है कि दुनिया में क्रिकेट खेला जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है, सोचा जाता है, समझा जाता है। ये एक मैदान है जहां पर क्रिकेट को जिया जाता है। यू लिव क्रिकेट हियर। और यहीं से टेनिस क्रिकेट आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा है। तो यहां पर कौन भूल सकता है वो रजत जयंती समारोह जिसमें एक से बढ़कर एक आकर्षण प्रस्तुत किए गए थे। और वाकई में दिस इज अ गुड ग्राउंड। मतलब एक चीज पक्की है कि अच्छा क्रिकेट और अच्छे क्रिकेट की तलाश ये वो मैदान है जहां पर आकर खत्म होती है। तो अब 11 गेंदों में 17 चाहिए। स्ट्राइक पर है मतीन और सामना कर रहे भावेश पवार का। 11 गेंदे 17 रन और दर्शक हमारे काफी उत्साहित होकर इस मैच का आनंद लेते हुए। इस बार हुक कर दिया है और मतीन आउट। वहां पर दर्शनीय कैच। हो सकता है हरेश कि ये कैच मैच का टर्निंग पॉइंट हो जाए। वाकई में इस तरह के कैचेस और इस तरह की दबाव की स्थिति में या तो दीपेश माली ले सकते हैं, या तो कुमार ले सकते हैं, या तो जयेश पाटिल ले सकते हैं, या तो जमा ले सकते हैं, या तो कुणाल ले सकते हैं, या तो माजिद बोबड़े ले सकते हैं। तो सिद्दीक भाई यहां पर अब आ रहे हैं मुनाफ और ये कैच वाकई में विकी स्पोर्ट्स कुक्से को लड़ने की ताकत दे रहा है। भावेश पवार की जो कमिटमेंट है उसकी मैं दाद देना चाहूंगा। खुद घायल है लेकिन उन्होंने जो कमिटमेंट दिया है कि घबराने की बात नहीं है, मैं अभी भी जिंदा हूं और जिंदा दिल क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल। नए बैट्समैन मुनाफ और हरेश, ये जो मुनाफ है ना, ये बहुत पॉपुलर है। ये जब आते हैं तो लोगों के दिलों पे छा जाते हैं और कभी कभी उदास भी कर जाते हैं। 10 गेंदों में हमारे कैमरामैन के सामने जो स्टैंड है उसको ना हलाएं, दाईं बाजू जो दर्शक है। 10 बॉल 17। जहां जहां पर कैमरामैन है उसके आसपास के क्षेत्र में जरा दबाव न बनाए। 10 बॉल 17। इस बार स्ट्रेट ड्राइव। भावेश पवार अब घायल हो चुके और घायल होकर वो अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट दे रहे हैं। ही इज एट हिज बेस्ट, द कैप्टन। इसीलिए तो बहुत मान क्रिकेटरों की फहरिस्त में वो चल रहे। क्या गेंद की थी वहां पर, आगे रखा था। 9 बॉल 17। इस बार ग्राउंड शॉट खेला था, स्वीप जो लगाया था वो स्क्वायर ऑफ द विकेट और 1 रन जयेश पाटिल का अंडरहैंड थ्रो और साहबान स्वयं उस बॉल को स्वीकार करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56, यानी कि 8 गेंदों में 16 रन। अभी भी बी इंडियन को मैच में वापस आने के लिए एक बड़ा शॉट चाहिए और विकी स्पोर्ट्स कुक्से को विकेट लेते रहना होगा अगर इस मैच को जीतना है। इस बार उठा दिया साहिबान ने और ये सुपर डुपर 6। वो सिद्दीक भाई कहते हैं मेहरबान कदरदान आ चुके हैं साहिबान। बिल्कुल, एक मारा उन्होंने, बिल्कुल 2 6 मारे, लेकिन एक क्या शॉट मारा है। मानो एक मारा लेकिन सॉलिड मारा। मतलब बी इंडियन का सरप्राइज पैकेज। साहिबान फक्की बॉलिंग सेंसेशन और यहां पर खेल दिया है मैच को
अब बिल्कुल भी इंडियन तक लेकर आए हैं। जब गेंदबाजी की तो स्पीड ब्रेकर का काम किया और बल्लेबाजी की तो लिफ्ट का काम किया। इट इज अ मैच ऑफ साहिबान फकी। 4 अच्छी गेंदे और 2 खराब गेंदे, मैच का बिल्कुल जो इक्वेशन है वो खराब हुआ। वो डीप वाइडिश मिड विकेट पे फील्ड कर रहे थे, बहुत ज्यादा वाइडिश कर रहे थे और साहिबान वो देख चुके थे। उमा चौहान हमारे बीच में जब उनकी मैजिक गेंदे खेलने में परेशान रहते थे, लेकिन आज क्रिकेट उनका भी मानना है कि बहुत उच्च स्तर पे चला गया है टेनिस क्रिकेट। बहुत खूबसूरत शॉट, पुल और पावरफुल। अब आखिरी ओवर में कितने रन चाहिए? 6 रन। मुकाबले में जान बाकी है। परफेक्ट वापसी की है बी इंडियन ने। बी इंडियन सिद्दीक, कल जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि बी इंडियन जब भी कोई टूर्नामेंट क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल स्टेज में आकर हार जाती है, दुगने ताकत के साथ वो उतरती है मैदान में, और वो स्पिरिट आज यहां पर साफ नजर आ रहा है। नहीं, ये 3 टीमों के बारे में मैं कहूंगा। एक तो विकी स्पोर्ट कुकसे, एक बी इंडियन और आजकल मराठा पंजाब है भी। बिल्कुल, ये तीनों टीमें जो कभी भी अपने आप को वापसी कर लेती है दूसरे टूर्नामेंट। बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के साथ अब और इस बात को सुने, कोई भी दर्शक अंदर नहीं आएगा, कोई भी मैच अथवा आपको पेनल्टी हो सकती है, कोई भी अंदर नहीं आएगा। और हमारे पुलिस कर्मी है, आपको भी थोड़ा बाउंड्री पे रहना है। हमारे वॉलेंटियर्स, आपको भी बाउंड्री पे रहना है। में साहिबान फकी जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, 2 बढ़िया शॉट लगाए। आज क्या खूबसूरत अंदाज में स्कोर को चेस किया गया है बी इंडियन दिखाते हुए। हरीश, एक बात और है, मनोज भीर को दूसरा ओवर नहीं दिया गया। यहां पर लंबा हिट लगाने का प्रयास, मुनाफ का साफ बीट, 5 गेंदों में 6 रन। हेमंत हरड़ नए ओवर की शुरुआत करते हुए 5 गेंदों में 6 रन। साहिबान मौके का इंतजार करते हुए, वहां पर मुनाफ थोड़ा सा प्रतीक्षा करते हुए विजय के लिए 5 बॉल 6 रन। बिल्कुल, ये मुकाबला अब हेमंत हरड़ वर्सेस बी इंडियन हो गया है। इस बार उठा दिया और शेखर दलवी के हाथों में गेंद सेटल होती हुई और मुनाफ आउट। 4 गेंदे 6 रन, विकी की वापसी। ये पूरा मैच अगर हरीश हम देखे तो पुराने जमाने में जो घड़ियां रहती थी हवेलियों में, उसका जो पेंडुलम बड़ा रहता था, कभी यहां तो कभी वहां। ये मैच कभी विकी की तरफ तो कभी भी इंडियन की तरफ। सिद्दीक, यहां पर एक सवाल मेरे जहन में और भी आता है कि मुनाफ अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे, क्या ये लाजमी नहीं था 1 रन देकर वो साहिबान जो कि बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं उनको स्ट्राइक देते? यही काम है। प्रेशर सिचुएशन को आपने देखा, जिस जमाने में चैलेंज खेलती थी, जय दुर्गा ए खेलती थी, क्या प्लानिंग रहती थी उनकी। ये देखते थे कि जो अच्छा खेल रहा है, कितना भी महान बैट्समैन है, स्ट्राइक उसको देता था। तो अब यहां पर गेंदें बची हैं कुल मिलाकर 4 और रन चाहिए 6। पहली 2 गेंदों में हेमंत हरड़ ने 100 आउट ऑफ 100 फॉर हरड़। अब स्ट्राइक पर है साहिबान। साहिबान जिन्होंने 2 गेंदों में 10 रन जड़ दिए थे अभी पिछले ओवर में। इस बार ड्राइव किया है, कम से कम 1 बनता है, देखना होगा दूसरा बन पाता है अथवा नहीं। और वहां पर जयेश पाटिल के पैरों का चरण स्पर्श करती हुई गेंद डिफ्लेक्ट और 2 रन। साहिबान, बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी से कम गलती होती है। इसी तरह की गलती इसी जगह पर आतिश पाटिल मराठा पंजाब ए ने गलती की थी। गेंद उनसे रिकोशेज होकर बाउंड्री पे चली गई थी और वहीं से आखिरी गेंद पर विकी स्पोर्ट कुकसे वो मैच को जीत गई। 3 गेंदे 4 रन कंपलसरी है, चेसिंग कंपलसरी है, सुपर ओवर नहीं है। इस बार उठा दिया है और इसके साथ ही बी इंडियन फाइनल में। कोई भी अंदर नहीं आएगा, प्लीज प्लीज कोई भी अंदर ना आए प्लीज। कामयाबी भरे क्रिकेट का नया पता साहिबान फकी। मैं तारीफ करूंगा विकी स्पोर्ट कुकसे की, उन्होंने अच्छा मुकाबला खेला। हार्ड लक विकी स्पोर्ट कुकसे एंड कांग्रेचुलेशन बी इंडियन
भी इंडियन फाइनल में पहुंचती हुई और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है साहिबान फक्की, आपको ऊपर जाना है। ये देखिए दोनों टीमें मिलती हुई, ये दृश्य देखिए, दर्शकों को देखना चाहिए कि दोनों टीमें आपस में कितनी प्रोफेशनल है। आपको पीछे जाना है प्लीज, आपको पीछे जाना है। व्हाट अ मैच। मतलब एक ही चीज कहूंगा कि मेहरबान कदरदान सुनिए मेरी बात, आ चुके हैं साहिबान।